Good morning, fourth class. So, in your EVS class today, we are going to start with a new chapter, and it is Let's Eat Together. So, in yesterday's chapter, we read that from where we get our food and the whole process of making food, that how farmers make produces and then it goes into the market, and then we go and buy that produce, and your mother or your father or any of your family member cooks the food for you. So, in today's class, we are going to start a new chapter, that is Let's Eat Together. It is about community eating and when all of us eat together. All right. So what are the occasions when we eat together, and what each and every occasion is being called. So in this chapter we are going to study about eating together on different occasions, about midday meals which we get in school, cultural diversity in food at special occasions, and eating in hostels. So these are the main topics which we are going to cover. Now, what is eating together? Why it is always said that we should eat our food together? जब हम खाना खाते हैं तो हमको एक साथ बैठ के खाना खाना चाहिए. It is a family time. So basically, in the daytime, everyone is busy in their own work. You as a student, you have a lot of work to do of your school. You have to study, you have to go out to play for your health. Your mother has to do all the office work, all the household chores which she is doing. Your father is out for his office work. So everyone is busy the whole day. So what happens, normally it happens that we eat our breakfast together, but nowadays we are eating it because all of us are at home. But in regular days you go to school very early, and then you don't have time to eat with your family. Then you come home in the lunch time. लंच में आप अपनी मदर के साथ बैठ के लंच करते हो if she is at home. Otherwise dinner is the only time when as a family all of us together sit and eat. That's why it is very important to say that dinner का टाइम ऐसा टाइम होता है जब सब फैमिली मेंबर्स जो है वो एक साथ बैठते हैं और एक साथ बैठ के खाना खाते हैं. And it is very important that we should not watch television or any other thing while eating food. It is family time. We must sit together. All of us must sit together, and we should say thank you to God for whatever He has given to us, and we should enjoy the meal together as a फैमिली. ऑल राइट. जब आप क्लास में होते हो तो आप क्लास में क्या करते हो? वॉट यू ऑल डू इन द क्लास. जब रिसेस होती है तो यू ऑल ईट योर लंच टुगेदर इन अ क्लास, राइट. आप सब लंच इकट्ठा निकालते हो, लंच की शेयरिंग करते हो, एंड आप लंच को एंजॉय करते हो, बातें करते हो, खाते हो, राइट. सो दैट इज अ वेरी ब्यूटीफुल टाइम यू एंजॉय. बहुत वेट करते हो ना, लंच होगा, सब खाना खाएंगे, शेयरिंग करते हैं. सो इट इज वॉट ईटिंग टुगेदर. इट इज अ बॉन्डिंग टाइम जब हम खाना एक साथ में खाते हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. Normally we eat together at home. It keeps us united and together. वो क्या करता है, हमको united बना के रखता है. हम सब लोग एक तरह का खाना खाते हैं और एक साथ बैठ के खाना खाते हैं, तो उससे हमारी बॉन्डिंग होती है. Sometimes a lot of families meet together on certain occasions and eat together. फिर क्या होता है कि कुछ families, जैसे आप अपने नानी के यहाँ जा रहे हो, अपने दादी के यहाँ जा रहे हो, तो सब families इकट्ठी मिलके खाना खाती हैं. Then we eat together. And sometimes family functions like Mundan ceremony, Janeu ceremony, marriage ceremony or birthday parties, these are the main occasions when lot of people come together and eat together. सब लोग एक साथ बैठ के खाना खाते हैं. शादी में क्या होता है, सब एक साथ बैठ के खाना खाते हैं ना. So the food for such big gathering is cooked by professional cooks. अब घर में कौन खाना बनाता है? घर में मम्मा खाना बनाती है most of the time, right? या even dad can also cook food, और दादा दादी और नानी, anyone can cook food. But what happens when we eat food in a big gathering, जहाँ पे बहुत सारा खाना बनाना होता है क्योंकि बहुत सारे लोग खाना खाने आए होते हैं, वहाँ पे most of the time खाना कौन बनाता है? प्रोफेशनल कुक्स, जिनका काम ही खाना बनाने का होता है. उनको हम लोग हलवाई बोलते हैं हिंदी में. मैरिजेस टेक्स प्लेस इन बैंक्वेट्स हॉल्स, लॉन्स एंड फार्म हाउसेस. शादियां कहाँ होती हैं? इन सब जगहों पे होती है, क्योंकि घर तो आजकल छोटे हो गए हैं, सब लोग घरों में नहीं आ पाते हैं. तो शादियां कहाँ पे होती हैं? बैंक्वेट हॉल्स में, लॉन्स में या फार्म हाउसेज में होती हैं. अर्लियर पीपल यूज टू इरेक्ट टेंट्स वेयर फूड वॉज सर्व्ड एंड पीपल यूज टू सिट टुगेदर इन लाइन्स एंड ईट. पहले क्या होता था, सब लोग लाइन में बैठ के खाना खाते थे. शादियों में ना ऐसे टेंट लगता था और सब लाइन में बैठते थे और खाना सर्व होता था. अब क्या हो गया, थिंग्स हैव चेंज्ड. अब चेयर टेबल्स आ गई हैं, लोग चेयर टेबल से बैठते हैं या फिर खड़े होकर खाना खाते हैं. लेकिन आज भी बहुत सारी कम्युनिटीज में ऐसा होता है, बहुत सारी शादियों में अलग अलग कल्चर की शादियां होती हैं, वहां पे देयर इज अ रिचुअल कि सब लोग एक साथ बैठ के खाना खाएंगे नीचे जमीन पर. टुडेज पीपल प्रेफर स्टैंडिंग एंड ईटिंग. बिग वेसल्स एंड स्टोव्स आर यूज्ड टू कुक द फूड. अब जब बड़ी शादियां होती हैं, बड़े फंक्शंस होते हैं, जब बहुत सारे लोगों के लिए खाना बनता है, तो क्या होता है, बड़े बड़े बर्तनों में खाना बनता है.
सिमिलरली पीपल गैदर इन रिलीजियस प्लेसेस टू ईट टुगेदर। अब रिलीजियस प्लेसेस में भी लोग इकट्ठा होते हैं और वहां पे खाना खाते हैं। यू मस्ट हैव सीन इन गुरुद्वाराज, गुरुद्वाराज में लंगर लगता है जहां पे सब लोग इकट्ठा बैठ के खाना खाते हैं। चैरिटी से पैसा इकट्ठा होता है, हर कोई थोड़ी थोड़ा दान दक्षिणा करता है और फिर खाना बनता है उन लोगों के लिए जिनको खाना नहीं मिलता है या जो पुअर हैं, या वो लोग जो वहां पे आके सबके साथ बैठ के खाना चाहते हैं। उस खाने को प्रसाद बोला जाता है। दिस इज कॉल्ड कम्युनिटी ईटिंग, और इस ईटिंग को बोलते हैं कम्युनिटी ईटिंग, जहां पे सब कम्युनिटी, सब लोग जुड़ के बैठते हैं और खाना खाते हैं। हेयर कास्ट क्रीड रिलीजन डज नॉट मैटर, और यहाँ पे किसी की जात क्या है, किसी का रिलीजन क्या है, किसी का रंग कैसा है, ये मैटर नहीं करता है। चाहे आदमी हो, औरत हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, जो मर्जी हो, वो वहां बैठ के एक साथ खाना खाता है, क्योंकि वो भगवान का घर होता है और भगवान के लिए सब एक बराबर है। फूड इज प्रिपेयर्ड बाय मनी कलेक्टेड बाय दी चैरिटी। खाना कैसे बनता है? जो मनी कलेक्ट होता है चैरिटी में। हम सब मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, तो क्या करते हैं? वहां पे मनी चढ़ाते हैं ना, चढ़ावा चढ़ाते हैं ना, उस चढ़ावे से खाना बनता है। दीज कम्युनिटीज ईटिंग्स आर कॉल्ड लंगर्स इन गुरुद्वाराज एंड भंडाराज इन टेम्पल। गुरुद्वारे में इसको लंगर बोला जाता है और टेम्पल्स के अंदर इसको भंडारा बोला जाता है। आपने देखा होगा बहुत जगह भंडारा लगता है जहां पे पूड़ी, हलवा ये सब बट रहा होता है। जो लोग, जिनके पास खाना नहीं होता, वो लोग वहां से खाना ले जाते हैं, राइट। तो इस तरह से कम्युनिटी ईटिंग होती है। अनदर फॉर्म ऑफ कम्युनिटी ईटिंग इज द मिड डे मील। अब जो स्कूल्स में खाना मिलता है, गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर खाना दिया जाता है, ताकि कुछ लोग जिनके पास पैसा नहीं है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, खाना नहीं है, वो इस खाने की वजह से बच्चों को स्कूल भेजे और वहां पे उनको मिड डे मील दिया जाता है। वहां पे क्या होता है? सब बच्चे एक साथ बैठ के खाना खाते हैं, एक तरह का खाना बनता है, सिंगल मील इज सर्व्ड और सब बैठ के उसको खाना खाते हैं। गवर्नमेंट प्रिपेयर फूड फॉर स्टूडेंट्स एंड इज सर्व टू दी स्टूडेंट्स इनसाइड द स्कूल। सरकार जो है वो खाना बनवाती है स्टूडेंट्स के लिए और स्टूडेंट्स को स्कूल के अंदर ही खाना वो सर्व होता है। दिस स्कीम इज कॉल्ड मिड डे मील। ये कौन सी स्कीम है? मिड डे मील स्कीम है, जो गवर्नमेंट देती है गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चों के लिए, ताकि बच्चे स्कूल में पढ़ने के लिए आए। The students who study in schools far away from their home also eat in hostel. और जो बच्चे हॉस्टल के अंदर रहते हैं, राइट, वो भी कम्युनिटी ईटिंग करते हैं। मतलब सब एक साथ बैठ के, जस्ट लुक एट इट, सब एक साथ बैठे हैं टेबल पे और सब लोग खाना खा रहे हैं, एक तरह का खाना खा रहे हैं। किसी का खाना अलग अलग नहीं होता, सब सेम खाना खाते हैं। खाना खाते हुए बातें करते हैं, दे एंजॉय, दे शेयर देयर वैल्यूज, दे शेयर देयर थिंग्स एंड दे ईट टुगेदर। सो इन हॉस्टल्स ऑल्सो पीपल ईट टुगेदर. There are too many students are served food together. A lot of children sit together and eat one time, eat food. और एक साथ एक समय पे बैठ के एक जैसा खाना खाते हैं। So this chapter is all about eating together. There are different ways of eating together. एक तो अपनी फैमिली के अंदर हम बैठ के खाना खाते हैं एक साथ, डिनर टाइम, लंच टाइम, ब्रेकफास्ट टाइम। संडेज को सब लोग घर पे होते हैं तो संडे को सब एक साथ ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर करते हैं। और समटाइम्स वी गो आउट in a restaurant and we eat together. Another type of community eating is eating at the ceremonies of family ceremonies like wedding, mundan ceremonies, birthday parties, right? And the one is called community eating, where there are langars held in gurdwaras and bhandaras and mandir and people are served food. One kind of food is served to everyone and everyone sit together and enjoy that meal. And midday meals is given, they are given in the schools for the students. They sit together and eat that meal. In the same manner, students who live in hostels, they also eat together, right? So this was all about eating together. Now, points to recall: we eat with our friends and relatives on special occasions like marriages and parties. In religious gathering, community eating is arranged. In government schools, government provide midday meals to the students. In hostel also, students sit together to eat their food. And in our regular schools also, हमारे स्कूल में हम क्या कहते हैं, रिसेस टाइम में क्या होता है, हम सब लंच अपना बैठ के शेयर करते हैं। वी सिट टुगेदर एंड वी शेयर आवर लंच, वी ईट टुगेदर। अपना अपना टिफिन लेके आते हैं और एक साथ खाना खाते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट ईटिंग टुगेदर, एंड ईटिंग टुगेदर इज अ वंडरफुल थिंग। खाना सब जब एक साथ बैठ के खाते हैं तो खाना और अच्छा लगता है। इसलिए यू मस्ट ऑल्सो in a day at least once eat your food with your family. Especially the dinner time should be the family time. अपनी family के साथ बैठ के dinner time पे एक साथ सब बैठ के खाना खाएंगे, and that is a wonderful time. We all should thank God for giving us food, and we all should eat our food together with our family. Now what you have to do, you have to read this chapter once again, and you have to solve all the questions which are given in the back exercises, and then I'll be sending you the answers of the same.